So the outcome of this session should be like you should have some ideas about who you are and what you have to choose, right? So 10th I consider as the most apt time to discuss career with you, because this is the time when you can prepare, you can work on skills, you can prepare for some entrance exams, and then finally land up into a career of your choice. So when it comes to choosing a career, I would like to ask from you, uh, do you have any idea about what would you do in your life ahead? आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? What may I hear some things, what would you like to become? May I know? Yeah, anyone who would like to say what would you like to become? So I would love to become an IFS officer, which is Indian Foreign Services. Okay, IFS is civil services. Okay, what else? और क्या बनना चाहते हैं? आप बैठे रहें और मुझसे बस बस बताते रहें. कार्डियोलॉजिस्ट, एनडीए डिफेंस सर्विसेज. You want to be a lawyer or a judge. Okay. Others, some ideas, quick shots. Yes. What would you like to become here? I'm becoming psychologist. Psychologist. Some more choices. Yeah. Entrepreneur. Okay. You want to be a chartered accountant? Okay. Please hold on. Yeah. Chartered accountant. Engineer. All right. So now you can see that if I would have asked this question to anyone right over here, मुझे 3 चॉइस या 4 चॉइसेस से ऊपर नहीं सुनने को मिलेंगी. दैट इज आई वॉन्ट टू बी अ इंजीनियर, एंड उसमें भी अगर मैं पूछूंगा तो कंप्यूटर साइंस. I want to be a doctor, or I want to be a IAS officer, right? These are what kind of careers? These are already programmed careers. Programmed मतलब हम लोग इन्हीं के बारे में बात करते हैं सारे टाइम सोसाइटी में. How many of you have explored yourself, and how many of you are keen and open to 6,500 careers which are available in the world, and we are still limited to those 10-12 careers only? For this you are having career counseling session to break this myth that we all can be only doctors, engineers, or IAS officers or chartered accountants. This is the session that is going to break those myths. And possibly I'll ask you this question again towards the end of my session. Let me see how much you grasp and what you can say. Young Achievers is a 25 years old institution that I have been running. This is my startup. I started way back in 98, and since then we have been fighting a case for offbeat careers. We are known for specializing in offbeat careers. So 25 years we have spent. I think, I don't know how many thousand students we have trained, and how many have been successful into the industry. They are in thousands. First few questions from you. आपको नहीं लगता कि आपका करियर आपकी नेचुरल एबिलिटी पे होना चाहिए? आपकी स्ट्रेंथ पे आपका करियर बनना चाहिए या आपकी वीकनेस पर? All of you are comfortable and very logical in saying that you want to make out a career on strength. What do we call strength? Strength को कहते क्या है? Strength क्या हो सकती है? Strength is not interest. Strength is your natural ability. The first question, what have you always been naturally good at? अगर मैं आप ही की लैंग्वेज में, आप ही के लेवल पर बात करूं अभी, तो सपोज
Some of you are naturally good at solving problems. That is mathematics. So that's your natural ability. You are least dependent on others to solve your problems. You can solve your problems by own. That is your natural ability. Some people are good at sports. Why others can't be good at sports? Because of natural ability. Some people can be really artistic, right, and are good at design. Others cannot. Why? Because of natural ability. Some are great learners. Some of you love to read books. Others don't. Because of natural ability. So ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना बनता है आपका कि where you are naturally good at. Most important question if you can answer. What do you enjoy learning most about? क्या लर्न करना या what do you love to do? पढ़ाई बहुत रेयरली किसी को पसंद होती है. I don't know how many of you would be happy to study. Some are naturally gifted, I know that, but then very rare जिनको पढ़ना पसंद है. नहीं तो लोगों को घूमना पसंद है, राइट? लोगों को वाइल्ड लाइफ देखना पसंद है, लोगों को मूवीज देखना पसंद है, मोबाइल पे सोशल मीडिया चैटिंग करना पसंद है. बहुत कुछ ऐसे एरियाज हैं जो पसंद है, बट ये आपको ऑनेस्टली सोचना है. वेयर यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट डू यू लव टू डू? आर यू गेटिंग? व्हाट आर यू नोन फॉर? आप किस बात के लिए फेमस हैं? I am known for my counseling sessions. I am known for my communication. I am known for my research. I am known for my drawing skills. Means you can be anywhere. I am known for my innovative mindset. मैं नई नई चीजें बनाता हूँ, right? And लोग देखते हैं कि what I make out of waste, out of scratch, I can create new things. Right? So where you are good at? So what are you known for? What is your prowess? What is your praise? Where do you get that praise? I cook excellent food, and that is what I am known for. Right? So what are the top 3 values that you love to be with? क्या वैल्यू सिस्टम है आपका? क्या बहुत पैसा कमाना है जिंदगी में, या अपने लिए बहुत सारा समय रखना है? आई वॉन्ट टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस, और आई वॉन्ट टू बी एन एंटरटेनर. मे बी आई वुड लाइक टू हैव फन एंड फूड इन माई लाइफ. दैट इज what I value in my life. I want to be into glamour. What do you value in life? क्या पसंद है आपको? क्या वो 3 वैल्यू सिस्टम्स हैं आपके? इंडिविजुअली यू शुड एक्चुअली आस्क फ्रॉम योरसेल्फ, व्हाट डू आई वैल्यू? मुझे क्या पसंद है एंड किन को मैं बहुत वैल्यू करता हूं? कौन सी वो बातें हैं? और क्वेश्चंस अपने आप से पूछना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो कभी करियर वाले पाथ पर तो चल ही नहीं पाएंगे. बिकॉज आई डोंट वांट दैट आई एम गिविंग यू सम थॉट. आई वांट यू क्रिएट अ थॉट फॉर योरसेल्फ. यू डिस्कवर अ पाथ फॉर योरसेल्फ. I can only show you the way that this is the way that you can rise into this path, but walk has to be yours. I will not walk with you. Are you getting? So you have to understand these introspective questions. अपने आप से ये questions आपको पूछने ही पूछते हैं. Next. Career myths क्या होते हैं? बहुत सारे career myths होते हैं एंड इनको समझना बहुत जरूरी है. नथिंग इज इम्पॉसिबल कहा जाता है हमको, फैंसी लैंग्वेज है.
नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. You have to draw a line somewhere. You need to understand what is the limitation. हर स्टूडेंट की, हर पर्सन की, every person who is here is individually different. And because you are all individually different, you have certain limitations in certain categories. You cannot be jack of all. So ये कहना कि nothing is impossible, this is absolutely just a motivational statement, but not a practical one. I don't agree. इसको फॉलो करते करते बहुत सारे लाखों लोग have become unemployed. क्योंकि वो 3 साल से गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स आप क्रैक नहीं कर पाएंगे. वहां 30 लाख लोगों की लाइन लगी हुई है, 2000 सीटें हैं, एंड आप अननेसेसरीली उसी में यू आर हिटिंग द वॉल अगेन. नीट दे रहे हैं लोग, 7 साल से दे रहे हैं, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं होगा आपसे. जेई दिए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये नहीं होगा, बिकॉज ये नहीं समझते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. मिथ है, राइट? देर आर सर्टेन बाउंड्रीज, ईच वन ऑफ यू हैव लिमिटेशंस हैं, अदरवाइज यू वुड हैव बिकम गॉड. कोई बाउंड्री में तो सब कुछ कर सकता हूं. डू देन. You don't know swim, you know how to swim and you can jump into the ocean. Nothing is impossible. I can learn. बॉडी आपकी वैसी है नहीं, आप जंप करोगे तो ज्यादा लंबे समय स्विम नहीं कर सकते. सो एवरीबडी इज गिफ्टेड विथ सम नेचुरल एबिलिटी. वही वो कर सकता है, अपनी अपनी एबिलिटीज में आप आगे बढ़ सकते हैं. बट ये कहना इज एब्सोल्युटली रबिश. पीसीएम लेने से बेस बन जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से बेस बन जाता है, बिकॉज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विल डू बेटर इन टू पीसीएम. दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अगर ऐसा होता तो आपके न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, इकोनॉमिक टाइम्स ये नहीं कहता दैट 80% ऑफ योर ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, जॉब लायक ही नहीं है. 80% of your engineers are not like employable. उनको काम ही नहीं आता है, सिर्फ उनके पास डिग्रीज हैं. राइट? क्योंकि एमबीबीएस एमडी नहीं कर पाए, बीएमएस कर लेते हैं, बीडीएस कर लेते हैं, बी फार्मा कर लेते हैं. ये सब कॉम्प्रोमाइजेस यू नो are not good for your careers. So you have to understand this. PCM लेने से बेस नहीं बनता है, बेस किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से बन सकता है. राइट? मैथ्स अच्छा नहीं है तो पीसीबी ले लेते हैं. अब आप ही बताइए, those who do not have good maths, will they have good physics? Everybody is smiling, yes. बट बायो पढ़ने का चार्म सबको है. क्योंकि मुझे बायो पसंद है, आई एम इग्नोरिंग द फैक्ट दैट फिजिक्स भी है उसके साथ में. देखा जाएगा, देखेंगे, बाद में देखेंगे. बायो तो अच्छा है ना, बायो लेके पीसीबी ले लेते हैं, एंड बाद में नीट हिलता नहीं है जस्ट बिकॉज फिजिक्स अच्छा नहीं है, और नॉन मेडिसिन करियर्स पता नहीं है. डॉक्टर के अलावा क्या बन सकते हैं बायो के साथ, ये बिल्कुल नहीं पता है, कोई अवेयरनेस नहीं है. सो इज इट राइट फॉर अस टू थिंक दिस वे? ये फेलियर के कारण बनते हैं मैक्सिमम. अगर इन चीजों के ऊपर आप लोगों की काउंसलिंग ना हो, सो यू वुड एक्चुअली डू दीज मिस्टेक्स. 101% यू विल डू इट. राइट? कॉमर्स कैन बी जस्टिफाइड विदाउट मैथ्स. कॉमर्स पढ़ना है, मैथ्स अच्छा नहीं है. भैया 80% ऑफ द करियर्स इन कॉमर्स आर मैथ्स बेस्ड. और सबसे बड़ी बात,
जिनको कॉमर्स में जाना है उनको यह भी समझना है कि कभी ना कभी वो एमबीए की तरफ जाते हैं। जब एमबीए की तरफ जाते हैं तो डू नॉट फॉरगेट कि आपका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो आईआईटीएंस के साथ होगा, बिकॉज आईआईटीएंस भी वही करते हैं। आईआईटी बीटेक करने के बाद दे गो इनटू एमबीए। तो इमेजिन कर लेना कि जब आईआईटीएन के साथ में कॉमर्स के स्टूडेंट को बिठाऊंगा विदाउट मैथ्स तो क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को तो हम समझते ही नहीं, ऐसे सोचते हैं कि कैसे भी आ जाएगा। बड़ी एक्सपेक्टेशन है, एबिलिटी के ऊपर बड़ा गुमान है, एस्पिरेशन इतनी हाई है, एबिलिटी है ही नहीं। ईच वन ऑफ यू हैज अ डिफरेंट एबिलिटी। एक जैसी एबिलिटी होती नहीं है किसी की भी। अपने लिए इंडिविजुअल करियर चुनो ना। ये ग्रुप में करियर क्यों चुनते हो आप? जस्ट बिकॉज हम लोग यहां 100 लोग बैठे, 100 करियर्स के नाम नहीं पता है हमें। लाइन से एक एक से पूछूंगा तो सब रिपीटिशन होते चले जाएंगे। एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड लाइक अ सिलेबस। एक बाउंड्री बना दी है सिलेबस की, सिलेबस के अंदर अंदर रहना है, उसी सिलेबस को फॉलो करना है। सिलेबस के बाहर क्या लर्निंग होती है पता ही नहीं है। जब प्रैक्टिकल लर्निंग ही नहीं है आपको तो करियर क्या थ्योरी पे बनता है? करियर तो प्रैक्टिकल डिमांड करता है आपसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिमांड करता है। आपसे एक्सपेक्टेशन होती है दैट यू विल सॉल्व सम प्रॉब्लम ड्यू टू विच यू विल गेट सम काइंड ऑफ जॉब और यू विल हैव योर ओन स्टार्टअप, बिकॉज यू इंटेंड टू सॉल्व सम करंट लेवल प्रॉब्लम। बट वो एबिलिटी अगर नहीं है देन व्हाट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट or is it going beyond your heads? Please tell me. All right. Humanities has limited scope. I'll talk about it. Humanities has amazing scope, and so has so you have scope into commerce and sciences also. कोई कम नहीं है किसी से. Marks have lost significance. आप में से बहुत लोगों को बोला जाता है कि मार्क्स की अब कोई जरूरत नहीं है, सब एंट्रेंस एग्जाम्स पे बेस्ड हो गया है. सो बिकॉज आई एम एन इंटरनेशनल कोच फॉर स्टडी अब्रॉड, लेट मी जस्ट गिव यू सम फैक्ट्स. 9th क्लास से शुरू होके 11th तक का रिकॉर्ड, 12th का रिजल्ट भी नहीं आया होता है, यू गेट एन एडमिट इनटू सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज, बट ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक्स. अगर कोई कहे आपसे दैट प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो, एकेडमिक्स कैसे भी रहें, कुछ नहीं चलेगा. कोर ब्रांच में, कोर फील्ड में, जिस फील्ड में आप जिस कोर्स को करना चाहते हो, अगर वहां आपके स्कोर्स कम हैं तो वर्ल्ड के किसी टॉप कॉलेज में आप पढ़ नहीं सकते. You cannot study into the world's any top university if you do not have the requisite marks to support your candidature. बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी वो भी. और किसी के एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं बट प्रोफाइल 0 है, वो भी आउट है. एक बैलेंस्ड प्रोफाइल चाहिए. गुड मार्क्स, एकेडमिकली नो कॉम्प्रोमाइज, एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल की बात कर रहा हूं. काम करने की एबिलिटी इनटू द फील्ड दैट यू वांट टू चूज. बाहर आप इंजीनियरिंग चूज करके देखिए जरा, बिना काम आए एब्सोल्यूट रिजेक्शन इन Tier 1 कॉलेजेस. आप MIT में अप्लाई करिए एंड टेल देम यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यू हैव नो आइडिया अबाउट कंप्यूटर साइंस, you cannot make new projects, you haven't done anything into that. आपके मार्क्स 99% है, आप फेल हो जाएंगे, वहां से वापस आ जाएंगे. बट दूसरी तरफ a candidate who has scored 90+% and has a work profile, he knows how to make projects or electronics, how to make drawings, mechanical drawings, how to create a product. He knows the things. He knows what to work on automation, what is electronics, right? What is electrical, and you have ideas.
you have worked on those things, then you will be the person who would be given the upper hand as far as selection is concerned, and the scholarships are concerned. So international जाने के लिए you have to write an essay कि जो आप कोर्स करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो. Write 800 words on that. 800 words on why you want to do this course. And उसके बाद another question, how you will make the difference in the lives of others by doing this course. What problems you intend to solve by doing this course for this world or for this society. Write another 800 words. And third question again, why we should give you scholarship. What is that X factor in you? क्या आता है आपको और क्या डिफरेंस आपने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है दैट वी शुड गिव यू द स्कॉलरशिप. कोई नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो क्या, या कोई इनोवेटर हो क्या, या टेडेक्स में टॉक्स दी हैं क्या आपने. यू हैव एनरिचिंग एक्सपीरियंस एट अ यंग एज. क्या बात है आप में जो आपको स्कॉलरशिप दी जाए. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर योर एडमिशन इनटू some of the top end universities of the world. And science जो पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, बायो स्ट्रीम वाले भी, राइट, यू नीड टू हैव मैथ्स टू गो अब्रॉड. अगर आप इंटरनेशनली यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू वांट टू अप्लाई आउटसाइड इंडिया इन अ टॉप कॉलेज. मैं ये नहीं कह रहा रशिया में, यूक्रेन में जाके ले लो एडमिशन, कहीं भी नेपाल में जाके, बांग्लादेश में जाके पढ़ लो, MBBS कर लो. वो भी रास्ते ढूंढ लेते हैं पेरेंट्स. पेरेंट्स का तो जवाब ही नहीं है, मतलब दे कैन डू एनीथिंग. जुगाड़ इज समथिंग दैट इंडियंस आर नोन फॉर, लेकिन गलत जुगाड़, और ऐसा गलत जुगाड़ कि आप अपने बच्चों की पूरी लाइफ रिस्क पे डाल देते हो, ये सोच के कि आप तो रिस्क ले ही नहीं रहे हो. सो ऐसे ऐसे डिसीजंस देखने को मिलते हैं दैट कई बार खुद समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें. हाउ टू चेंज दिस थॉट प्रोसेस. इतना कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस कि आज भी हम 70 साल से पुरानी, जो इतनी पुरानी ब्रांचेस हैं, आज भी हम वही स्लेवरी में जी रहे हैं. एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा हमको. हम इंजीनियर्स बन के भी उनको USA को अपने ब्रेन्स दे रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हम नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि हमें तो जॉब करनी है. हमें तो कोई 1 करोड़ का पैकेज देके खरीद लेगा, हमारे ड्रीम्स हो गए पूरे. वहां पर सोच ये है कि कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर का एक एम्पायर खड़ा करा जाए. कैन यू बिलीव गूगल कैसे बना? कुछ लोगों ने, इंडियंस ने एक फॉर्मूला क्रिएट करा, एक एल्गोरिथम बनाया, वो एल्गोरिथम लैरी पेज को बेच दिया शेयर्स के बदले, राइट. एंड गूगल हमेशा के लिए इंडिया से दूर हो गई, और इंडियंस वर एट दी ग्राउंड, दोज हु वर मेकिंग गूगल. ये तो हालात है हमारे, ये सोच है हमारी. एजुकेशन से क्या फायदा होना चाहिए? वी शुड एक्चुअली, एजुकेशन शुड एक्चुअली ब्रॉडन आवर होराइजन, but unnecessarily what we are doing is narrowing down our horizons. We are so mechanized, इतने mechanized हो गए हैं. वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर, मार्क्स. We do not enjoy learning. हम ये नहीं समझ पाते इस एजुकेशन का यूज फॉर अ लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैसे करना है. नो रिसर्च वर्क, absolutely blank on that, right? So somehow we need to take some steps. That is what we want. So careers are only academic, ऐसा भी नहीं है. careers are super non academic. academic से आगे बहुत सारे careers हैं. Let's talk about them. थोड़ा आगे चलते हैं. STEM based, science, technology, engineering and maths.
I have half an hour. Right? So साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में इंजीनियरिंग ये सबको पता है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है, राइट? एवरीबडी नोज अबाउट देम, राइट? एवरीबडी हैज गुड आइडिया, राइट? देन मेडिकल, एमबीबीएस, बी फार्मा, बीडीएस, ये सबको पता है. आर्किटेक्चर या लाइफ साइंसेज में बीएससी करना, ये सबको पता है. बीएससी फिजिक्स, बीएससी बायो, एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट? What we do not work upon is new age careers, जैसे बैचलर्स इन जीन थेरेपी. ऐसे म्यूटेंट्स को क्रिएट करना जिससे डिजीजेस को हम कंट्रोल कर पाए, कैंसर जैसी चीजों से फाइट कर पाए, एड्स जैसी चीजों से फाइट कर पाए. ऐसे म्यूटेंट्स को क्रिएट करना जो हमारे जीन सिस्टम को स्ट्रॉन्गर, बेटर बना सके, उनके ऊपर रिसर्च करना. ये क्या काम, कौन करेगा ये काम? आप लोग नहीं करेंगे क्या? क्योंकि आप लोग तो केवल वही करना चाहते हैं जो सुना हुआ है बस. इनके बारे में रिसर्च कौन करेगा? राइट? देन रोबोटिक्स. रोबोटिक्स कौन सी ब्रांच की फील्ड है बताइए जरा. हाँ, आईटी, सीएस, बहुत बढ़िया. और नो, रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. भाई रोबोटिक्स ऑटोमेशन है भाई, सेंसर्स है, सेंसर्स और रोबोटिक्स. ये पीसीबी जो बनती है उसकी, ये कौन एम्बेडेड सिस्टम्स पे कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर. इट इज टफर देन कंप्यूटर साइंस. एंड डू यू नो दैट हमारी इकोनॉमी में अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे जा रहा हूं सॉरी, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है. आईटी रेवोल्यूशन हो चुका है, राइट? हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से इंजीनियर्स क्रिएट करे. सीएस स्टैग्नेशन है वहां पर, रोज 100 लोगों की जॉब्स जाती हैं. ये डेटा आप तक नहीं पहुंच रहा है, but lot of people leave or are being made to leave the jobs. Why? Because you have huge supply of CS engineers. जितनी सप्लाई बढ़ा लोगे उतनी वैल्यू डिक्रीज कर लोगे, या इतने स्ट्रांग हो जाओ सीएस में कि आप एल्गोरिथम्स, जो एआई के एल्गोरिथम्स है वो भी क्रिएट करने शुरू कर दो आप. तो उसके लिए तो फिर ब्रेन चाहिए, वो तो अलग लेवल हो गया. उसको छोड़ दे तो बाकी सीएस का जो 80% ऑफ द फैक्टर, वो जो सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आता है, 80% ऑफ इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, वो सीएस के लिए आता है. कोडिंग नहीं हो पाती उनसे, और अब कोडिंग की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एआई इज डूइंग कोडिंग. आप तो एआई की कोड कर सको तो बताओ. उसके लिए जबरदस्त मैथमेटिकल मॉडल्स पढ़ने की एबिलिटी चाहिए. ओनली फ्यू सिलेक्ट हैव दैट, नेचुरल एबिलिटी वाले. वो भी बिक जाते हैं, 1 करोड़ के पैकेज में बिक जाते हैं. अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अपना स्टार्टअप क्रिएट करने की हिम्मत ही नहीं है. रिस्क एवर्स है, रिस्क टेकर्स है ही नहीं. सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये फील्ड आज के टाइम हमने रोड मैप तैयार करा है. हमारी इकोनॉमी में पहले क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम थी. सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग आता था. थर्ड नंबर पे सर्विसेज आती थी. आज सर्विसेज सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर है, और थर्ड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग है. वो इसीलिए क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम ही नहीं है, सारा चाइना में है. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, कैपेसिटर, डायोड्स, रेजिस्टर्स, माइक्रोचिप्स, नैनो चिप्स, ये जो बनते हैं ये सारे चाइना में बनते हैं. अब जाके गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चेंज करा है कि हम यहां सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का हब इंडिया में क्रिएट करेंगे, जिसको 10 साल लगेंगे अब. बट नेक्स्ट 10 years इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स. मार्क माय वर्ड्स, अगले 10 साल
CS के नहीं है, अगले 10 साल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के मिलेंगे, बिकॉज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज यहां आके अपने यूनिट्स लगाएंगी इंडिया में, एंड इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। सीमेंस जैसी कंपनीज, SG थॉमसन जैसी कंपनीज जो चिप्स बनाती हैं, माइक्रोचिप्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, राइट, ये सारे काम, ये सब काम इंडिया में होंगे अब। सो अमेजिंग स्कोप। इकोलॉजी, balance between humans and other species, animals, insects, humans, how we are creating an impact into their lives and how to coexist is ecology. Research, a matter of grave threat, जिसके ऊपर काम की जरूरत है। हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा एनवायरमेंट को, उसको बचाना कैसे है? अमेजिंग स्कोप इन इकोलॉजी। साइंटिस्ट, क्या दिक्कत है यहां जाने में? मेडिकल इलस्ट्रेशंस, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल इलस्ट्रेशंस देखिए कितना स्कोप है इसके अंदर, जितनी टेक्निकल मेडिकल रोल्स हैं, इलस्ट्रेशंस वाले, ड्राइंग्स वाले, या जो मशीन से हम ह्यूमन बॉडी को अंदर से स्टडी करते हैं उनके स्केचेस, राइट। सो एक्सरेज कह लीजिए आप उसको, CT स्कैनर्स कह लीजिए, या उससे भी एडवांस लेजर स्कैनर्स कह लीजिए, उसके ऊपर जो काम हो रहा है, इलस्ट्रेशंस के ऊपर काम हो रहा है। सो दैट इज द रूट थिंग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्कोप रहेगा आने वाले टाइम में। कभी एंड नहीं होगा इसका, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देन वी हैव फोटोग्रामेट्री, सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी करना। फोटोग्रामेट्री, सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी करना और हेल्प इन प्रिडिक्शंस। सो फोटोग्रामेट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एस्ट्रोफिजिस्ट हम बात करते हैं, या ये फोटोग्रामेट्री कह लीजिए, आपको इसमें बहुत ज्यादा रोल मिलेगा, राइट, एज अ साइंटिस्ट टू परफॉर्म, राइट। इसके अलावा पायरोटेक्निक इंजीनियर, ये पायरोटेक्निक इंजीनियर्स कौन होते हैं? आप IPL देखते हो, आप वो जो फायरवर्क्स देखते हो हवा में, राइट, इन द स्काई, वो जो अलग फॉर्मेशंस बनते हैं, व्हाई दोज ओनली फॉर्मेशंस एंड व्हाई दोज कलर्स, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन दैट इज क्रिएटेड, दैट इज इंजीनियरिंग। सो पायरो इंजीनियरिंग दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन डू। कितना अनकन्वेंशनल फील्ड है और अमेजिंग स्कोप। जितने इवेंट्स होते हैं सब में यूज होता है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन से लेकर के, बड़े बड़े इवेंट से सेलिब्रेशन से लेकर के, सब जगह पायरो इंजीनियर्स चाहिए टू सेलिब्रेट। फॉरेंसिक्स, यू अंडरस्टैंड फॉरेंसिक्स, क्रिमिनोलॉजी, एविडेंस, इसको पकड़ने के लिए यू नीड फॉरेंसिक्स, ये भी साइंस का काम है, राइट। देन बियॉन्ड दैट साउंड इंजीनियर्स, वो साउंड इंजीनियरिंग, जितने आप मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं, सब जगह एक एनवायरमेंट चाहिए, उस एनवायरमेंट को क्रिएट करने का काम, चाहे वो बैकड्रॉप, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे वो फोरफ्रंट में हो, राइट। यू नीड टू वर्क विथ साउंड इंजीनियर्स, साउंड डिजाइनर्स। क्रिप्टो एनालिसिस, सो क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है? जो एथिकल जो हैकर्स होते हैं, बेसिकली हैकर्स, वो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, अगर वो हैक हो जाए तो सोचो क्या हो जाए। उनको बचाने के लिए, हैकिंग से बचाने के लिए, यू हैव अ फील्ड कॉल्ड क्रिप्टो एनालिसिस। दीज आर दी गीक्स, मैथमेटिकल गीक्स, जो हैकर्स की भी लैंग्वेज को, उसको भी कोड करके दे कैन कन्वर्ट इट इनटू देयर फेवर, कि हैक ही ना हो वो। So crypto analysis, those who can work on finest mathematical models, these are the people, those who do this work. So mathematics का बहुत बड़ा रोल है साइंस में, बहुत मेजर रोल है, and I need natural ability for that. मुझे ट्यूशन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए उसके लिए, कि रोज जिनको रोज धक्का मारना पड़े पढ़ने के लिए मैथ्स,
पास हो जाओ भाई कैसे करके इसको, या तो उसमें जाओ या उससे बाहर बहुत सारे करियर है, मैं बता रहा हूं अभी आपको, उसमें जा सकते हो आप. यू हैव प्रोडक्ट डिजाइनर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर्स. अच्छा, ये वी हैव मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, सो स्टीम बेस्ड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स. यूज ऑफ आर्ट्स. साइंस में आर्ट का क्या रोल है? जबरदस्त रोल है. You have mechanical engineers, they need to be artistic. You have civil engineers, architects, interior decorators, interior designers. You need to be artistic. You need to be good with your drawing, sketching. So if someone is good with maths and also at the same time good with sketching, you can go with these careers: mechanical, civil, architecture, website, मॉडर्न अर्बन प्लानर, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियंस. ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियंस कौन होते हैं? इंजरी हुई तो उसको ठीक बिल्कुल सही एंगल पर ड्रॉ करके निकालना, क्योंकि उसी के ऊपर काम होगा. मशीनरी का ऐसा यूज करना कि आप बिल्कुल सही एंगल पर जो है, जो इंजरी है उसको आप दिखा पाए विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग. सो यू नीड स्केचिंग, यू नीड आर्टिस्टिक वर्क. सो देन यू हैव biomedical engineers, you have product designers, animators, and forensic psychologists. So we are talking about these all categories where we have science, technology, engineering, arts and maths, a combination. तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी है तो आप क्या क्या कर सकते हैं. कॉमर्स बेस्ड करियर्स में सम ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सबसे ज्यादा हाईली अगर इसमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोई भी काम अगर आप देखेंगे तो मैथ्स का रोल कॉमर्स में होता है. सबसे ज्यादा बैंकिंग एंड फाइनेंस इसका मेजर पोर्शन है कॉमर्स का. बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाने के लिए यू नीड टू बी स्ट्रांग विद मैथमेटिकल सेंस. सो एक्चुअरीज क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट. जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी गुड सेल कर रहे हैं पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनका एक रिस्क होता है. उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल्स क्रिएट करना कि कितना प्रीमियम हो जिससे हम इसके रिस्क को कवर कर पाए. सो दैट इज द वर्क ऑफ एक्चुरियल साइंटिस्ट. सो फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वेल्थ को टेक्नोलॉजी के हेल्प से कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप ही के मनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, with the use of artificial intelligence into fintech. So नए मॉडल्स, कंपनीज लाइक स्मॉल केस, ग्रो, ये कंपनीज क्या हैं? दे आर फिनटेक कंपनीज. आने वाला टाइम इज ह्यूज ऑन दिस, राइट. बिजनेस एनालिसिस इज फॉर डेटा साइंटिस्ट. डेटा क्रिएट, डेटा के ऊपर काम करना और फिर फंक्शनल मैनेजर्स को देना ताकि वो डिसीजंस ले पाए. उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉयर्स, दोज हु डील विद मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेकओवर्स, टैक्सेशन, राइट, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट लॉयर्स, राइट. सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीशिप, जिन्होंने कुछ लोगों ने बोला कि हम ये बनना चाहते हैं, बट अगेन मैथमेटिकल प्रोएस इज नीडेड. बियॉन्ड दिस यू हैव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, 30 लाख के पैकेजेस, 30 लाख के, 1 करोड़ तक के पैकेजेस यू गेट ओनली इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पैकेजेस यू गेट थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. एंड उसमें से 90% इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के इन्वेस्टमेंट में आते हैं बाद में. बीटेक छोड़ने के बाद एमबीए करते हैं फाइनेंस में टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है यार ये मैकेनिकल, ये हम कंप्यूटर पे 18 घंटे हम नहीं कर सकते काम रोज, 5 साल कर लिया बहुत है. लेट्स गेट इनटू अ मैनेजरियल पोजीशन. बैठ के फंड्स को मैनेज करते हैं, एक डिसीजन से $1 बिलियन इधर से उधर हो जाते हैं, पता नहीं चलते. So that is the kind of work they do. So कॉमर्स वालों प्लीज मैथ्स को हल्के में नहीं लेना है. आपकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी पीसीएम वालों की होती है.
अगर आपको ऐसे करियर्स में जाना है तो, राइट। देन वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एचआर, इन सब के बारे में बहुत डिस्कशन करने की जरूरत होगी. प्रॉब्ली आई हैव वेरी लेसर टाइम टू टॉक अबाउट मेनी करियर्स, सो आई विल मूव फॉरवर्ड. बायो बेस्ड करियर्स में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, वो जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, राइट, या हार्वेस्टिंग के अलावा और सीड्स को नर्चर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो पेस्टिसाइड्स को यूज करने के लिए इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करना, राइट, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोटेक, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे एरियाज आर बायो स्टार्टअप्स. इसमें जॉब से ज्यादा स्टार्टअप्स की जरूरत है और स्टार्टअप्स बहुत सारे इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, राइट. उसके अलावा नॉन मेडिसिन में जाइए तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, जियोग्राफर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब बायो बेस्ड करियर्स हैं बट नॉन मेडिसिन में है. इतने सारे करियर्स आपको बियॉन्ड बिकमिंग अ डॉक्टर हैं एंड हम लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं. वी आर ओनली स्टक विद वन ऑप्शन, दैट इज नीट देना है और कुछ नहीं करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन ओवर हियर, राइट. सो प्लीज मूव नेक्स्ट. Yeah, next. Humanities में, if you look into this aspect, you have careers like fine arts, design. Humanities में मुझे कुछ चीजें आपसे चाहिए. एक तो लैंग्वेज पे कमांड, कोई भी लैंग्वेज हो चलेगा, बट लैंग्वेज पे कमांड एंड रीडिंग हैबिट्स, सिलेबस के बाहर भी पढ़ने की आदत. That learning ability if you have, then we can actually go for such careers. And if you are creative also, creative ability भी है आपके अंदर, so we can pick up careers like fine arts, design, hospitality. Hospitality is airlines, travel, tourism, right? ये सारे careers उसमें आते हैं. Then visual merchandising, जितने भी आप ये showrooms देखते हैं उसमें जो display होता है वो कैसे हो, so that visually it becomes very appealing. So visual merchandiser is the role that you play. Beyond that, travel, culinary arts, food, art of making food, right? Travel, tourism, graphics के बिना आप आज के ऐप से ही क्रिएट कर सकते हैं. UI UX के ऊपर बात करते हैं, you need graphic designer for that. Beyond that, you have journalism, filmmaking, public relations, advertising, web series, right, music production, blogger, ये सारे careers, television production, lawyer, curator, political analyst, social media psychologist, और editor, creative writers, chefs, कितने careers और हैं इसके अलावा. There is no end to careers for humanities also. But what we need to know is, we need to discover you first. Right? Next, please. You have 6,500 careers, and again, we are only limited to 10 to 12 careers. I think few hundred I have covered for you. Next. Now, this is all because of lack of career counseling. आज भी हमारी सोसाइटी में career counseling is a taboo. उसको समझते ही नहीं है कुछ. लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, करियर खुद ही बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, जैसे वैसे चलते चलते. मम्मी पापा से पूछ लेंगे, अंकल आंटी से पूछ लेंगे, पड़ोस वाली दीदी से पूछ लेंगे, बट करियर काउंसलर के पास नहीं जाएंगे. और नहीं जाएंगे तो फिर उसका प्राइस इतना बड़ा होता है कि जिसको मैं कोट नहीं कर सकता यहां पर. अगर मैं कलेक्टिव, अगर एक सिंपल एक एस्पेक्ट बताऊं, इतना मिसमैच है करियर्स में कि हम इतने गलत डिसीजंस लेते हैं कि पीपल, अगर एक फैमिली के ऊपर बात करूं तो 8 से 10 लाख रुपए वेस्टेज, कंप्लीटली गोइंग इनटू ड्रेन,
just because of lack of career counseling. ऐसा क्योंकि एबिलिटी आपको लगता है आपकी एबिलिटी ये है, एस्पिरेशन कुछ है, कोई आपको शीशा दिखाने वाला तो है नहीं, someone who can show you the mirror that who you actually are. उसके लिए तो किसी अनबायस्ड पर्सन के पास जाना चाहिए जो आपको यह बता सके कि आप कौन है, या अपनी ईगो ऊपर रखनी है. तो उस ईगो के चक्कर में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर के इतना जबरदस्त लॉस करते हैं कि अगर उसको कलेक्टिवली रखा जाए तो शायद पता नहीं हमारा क्या % ऑफ जीडीपी उसमें वेस्ट ड्रेन हो रहा है. एजुकेशन इज अ बिग बिजनेस, प्लीज अंडरस्टैंड. आज के दौर में एजुकेशन हैज बिकम बिजनेस. आप जरा सी गलती करो और आप उसका नतीजा सिर्फ लॉस ऑफ मनी में ही आप भुगतोगे. लेकिन करियर काउंसलर के पास लोग आज भी नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं जब प्रॉब्लम होती है. राइट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ईच वन ऑफ यू इंडिविजुअली needs that proper career counseling, and all of you, because each one of you is different here, everybody has a different potential to choose a career. अगर यहां 100 लोग हैं, so I can give you 100 careers, each one of you one career, separate career. सोचने की जरूरत नहीं है, उस पर चल के देखो. फिर I can make you walk also on that, and you will have much better results, much better results. Right. Next. Now what we do, how we function, we have a program wherein we prepare you for Indian colleges. कुछ हमारे tier 1 colleges हैं, जैसे IITs, triple ITs हो, या NIDs, IIMs, National Law Universities. सेप्ट का नाम नहीं सुना होगा आपने, सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर का और इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत बड़ा कॉलेज है. राइट. IIFT, NIFT इज फॉर फैशन, IIFT इज फॉर फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, और ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जेवियर्स फॉर कम्युनिकेशन, एंड IHMs फॉर होटल मैनेजमेंट, ओबरॉय सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर होटल्स, IIT चेन्नई फॉर मास्टर्स इन ह्यूमैनिटीज. IIT चेन्नई में 5 साल का मास्टर्स इन ह्यूमैनिटीज कोर्स होता है. एंड देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, TIS, बॉम्बे, one of the finest colleges. These are creme de la creme colleges of India, where we prepare you for entering into these colleges or plan a route for you how to prepare for or get into these colleges. Then tier 2 colleges are, which are again very good colleges like SP Jain, Christ, Symbiosis, Ashoka, Flame, Kriya, Plaksha, Shivnadar. These are some of the finest colleges like tier 1 colleges. Just that they are not that old, but they are great colleges. Entering into such colleges is also like making out a career, and they offer lot of non-conventional choices. Lot of choices available for you in non-conventional careers into these colleges. ऐसे colleges जहां जो कभी ब्रांच सुनी नहीं होगी, आपको वो ब्रांचेस भी यहां मिलेंगी एंड उनके बारे में पढ़ सकते हो आप. राइट. बियॉन्ड दिस tier 3, ये कॉमन यूनिवर्सिटीज हैं. I don't consider them relevant in current environment. So जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस छोड़ दीजिए ऊपर के टॉप के, बाकी नीचे सब बेकार है. राइट. सेम इज विद मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, कुछ ऊपर के कॉलेजेस छोड़ दीजिए, बाकी नीचे कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, ओनली सेलिंग द डिग्रीज. देन यू हैव tier 4 कॉलेजेस जिनका नाम बहुत ज्यादा नहीं है, बट दे आर considered to be still good. They are able to manage average class of students also. तो वहां एक एवरेज स्टूडेंट भी पहुंच सकता है, लाइक यूपीएस, पर्ल, एमईटी, शारदा, गलगोटिया, जेपी, एसआरएम, वीआईटी. यहां पर एक एवरेज स्टूडेंट भी अपनी सीट ले सकता है, एंड दे आर डूइंग सम गुड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. इसके नीचे कॉलेजेस में जाना इज अ बिग रिस्क. राइट. सो वी कैटेगराइज देम, वी हेल्प यू टू गेट इनटू सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ दीज कॉलेजेस. नेक्स्ट प्लीज. Then we have international colleges, we prepare you for. इसके बारे में जिसको internationally separate मेरे से discussion करना हो, you can do that. But in short, we have MIT, Harvard, Stanford, Yale, which is the top bracket. इसमें पहुंचने के लिए सही समय होता है क्लास 9th के बाद, which is now. So 10th, 11th के बीच में, 11th जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी, आपका 1 साल पहले फॉर्म कंप्लीशन हो जाते हैं इसके.
So there is a separate timeline to study अगर international जाना है किसी को भी यहाँ से, right? So then you have tier 2 colleges, tier 3 and tier 4. So you have different colleges available. जैसे मैंने इंडियन कॉलेजेस को रैंक करा, ऐसे ही यहाँ पर इंटरनेशनल कॉलेजेस को भी हम रैंक कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, प्रिपरेशंस के लिए व्हाट वी हेल्प यू विद, वी हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दीज एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक आईपी मैट, that is for 5 years MBA program into IIMs, or CUET for some of the top colleges only, like NPAT is for Narsi Monji, Symbiosis, NIFT, NID, IHMs, CLAT, LSAT, ZAT, Mumbai University, IFT or UCED is for designing, IIT Bombay. So ये सब preparations is what we help you with. Beyond that, you have some international preparations wherein you have SAT and APs. Along with that, you have essays, SOPs, LORs, letter of recommendation, statement of purpose. ये सब लिखना होता है. As I told you in the beginning that we have to write essays for international admissions. So there we assist you in application formations. And along with that, there are common exams like IELTS and TOEFL. And वो भी exams देने होते हैं international जाने के लिए. तो वो सारी preparations, all these 3 things we help you with to decide into a career. So 10th is the right time. You can start doing that. 10th and 11th. यू कैन प्रिपेयर. 12th में जब आप आए ही होंगे तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं, 12th के रिजल्ट से पहले आपको कॉलेज मिल चुका होगा. बहुत सारे इसमें ऐसे कॉलेजेस हैं, अर्ली राउंड एप्लीकेशंस होती हैं. अगर हम जुलाई में डालें, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाता है, एंड 12th अभी हमारी कंप्लीट भी नहीं होती है, एंड वी गेट अ कंडीशनल ऑफर फ्रॉम दीज कॉलेजेस, राइट. नेक्स्ट, दिस इज सम अमेजिंग सक्सेस दैट वी हैव गॉट इनटू द रीसेंट ईयर्स. Almost हर साल you can expect around 100 to 200 students, clearing into different categories. And लगभग 5000 स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं हमारे पास जो IIMs, IITs या NLUs या NIFTs या नॉन कन्वेंशनल IHMs या अलग अलग एरियाज में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बहुत ऐसे करियर्स, म्यूजिशियंस, ऐसे करियर्स हैं जहां पर लोग एस्टैब्लिश्ड है फ्रॉम मेरिट ओनली. So we have a very strong network of people wherein you want, you will get the references of all these 5,000 plus students, those who are actually working nationally and internationally. Right, next. This session, I want that your parents should also listen. So we have a YouTube recording for that. So this session you can watch on channel. My channel is Love Jain Career Counselor. So you will be able to see the video, and you can show it to your parents also that this is what career counseling is called, right? So that you get an idea. Then you have Instagram page as Young Achievers Merit. My Facebook page is Young Achievers Learning Center. Some of you, those who want to subscribe or like or share, you can always do that, right? That's up to you.